اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج جس ویڈیو پہ میں ریئیکشن دینے والی ہوں وہ ویڈیو ہے منور زماں سر کی، جو کہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہونے والی ہے اور اسپیشلی آج کی یوتھ کے لیے، آج کی جنریشن کے بچوں کے لیے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے منور زماں سر کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ان کی موٹیویشنل اسپیچز بھی سنی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہیں سنی ہیں تو پلیز ان کے چینل پر وزٹ کریے اور ضرور ان کی موٹیویشنل اسپیچز سنیے۔ بہت اچھی اسپیچ دیتے ہیں آج کل کے بچوں کے لیے، آج کل کی جنریشن، آج کی یوتھ کے لیے بہت اچھی موٹیویشنل ویڈیوز بناتے ہیں وہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ محلے میں بہت سے بوڑھے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدھ نوجوان بچہ تو ضرور ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ باقی سارے نوجوان بچوں میں یہ خواہش ہونا کہ کاش میں بھی ایسے نماز فجر کے لیے اٹھوں اور پڑھوں۔ یہ ایسا کوئی اسکول گوئنگ چلڈرن، کالج گوئنگ چلڈرن کے ڈیزائرز ہیں آج۔ اس کے پاس کار ہے تو آپ کے پاس بھی کار ہونا چاہیے، اس کے پاس میں بائک ہے تو آپ کے پاس بھی بائک ہونی چاہیے، اس کے پاس میں آئی فون ہے تو آپ کے پاس میں بھی آئی فون ہونا چاہیے، اس کے پاس میں اگر سوشل میڈیا پر 1,00,000 فالوورز ہیں انسٹاگرام پر تو آپ ہر ممکن کوشش کرو گے کہ میرے بھی 1,00,000 فالوورز ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں سوچتی ہے قوم کہ اس کے پاس میں خوب علم ہے تو میرے پاس میں بھی علم ہونا چاہیے، اس کے پاس میں غضب کا ادب ہے میرے پاس میں بھی یہ ادب ہونا چاہیے، اس کے پاس میں سکلز زبردست ہے میرے پاس بھی سکلز ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں سوچ رہا انسان۔ یہ وہ زمانہ ہے جو لڑکیاں لڑکوں کی نقل کر رہے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کی نقل کر رہے ہیں۔ ایک دور تھا جو پھٹے ہوئے کپڑے کو سی کر پہنا جاتا تھا، آج سلے ہوئے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر پہن رہے ہیں۔ نہیں سر، یہ سٹائل ہے، فیشن ہے، آج کل چل رہا۔ اگر آج کل چل رہا کر کے شاہ رخ خان پورے کپڑے اتار دیے تو آپ بھی اتارو گے؟ آج ہر غریب بندے کی خواہش ہے کہ اس کے پاس ایک بائک ہو، اس کے پاس ایک آئی فون ہو، اس کے پاس اچھے کپڑے ہو۔ یہ ہر بندے کا ایک ڈیزائر ہے آج۔ پہلے یہ ڈیزائر نہیں ہوا کرتا تھا، کسی کو یہ خواہش نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے گھر بھی ایک ٹی وی ہوتی۔ جس گھر میں ٹی وی ہے وہاں جا کر کوئی میچ دیکھ لیے، کوئی چیز دیکھ لیے، پروگرام، خوش ہو جاتے، پھر واپس گھر آ جاتے تھے، آج سے 40 سال پہلے۔ لیکن اب ہر بندے کی خواہش ہے، آپ نے کوئی چیز کسی کے پاس اگر دیکھی ہے نا، امیڈیٹ آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز میرے پاس آ جائے، اور وہ چیز نہ ملی اگر آپ کو تو گریجولی آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہے۔ 850 کروڑ لوگ اگر اس دنیا میں اس وقت میں سانسیں لے رہے ہیں نا، اس میں کہتا ہوں کہ 700 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے ڈیزائرز ہیں، جن کے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں، کچھ بہت بڑی چیز پانا چاہتے ہیں وہ، لیکن محنت نہیں کرتے ہیں، ذری بھی محنت نہیں ہے، اندر سے کریک نہیں ہے ان میں، پریشر اندر سے نہیں ہے ان کا۔ ڈریمز تو ہیں ضرور، ڈیزائرز تو ہے ضرور، لیکن ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ کمٹمنٹ نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، پریشر اندر سے نہیں آ رہا ہے، اسی لیے ریزلٹس ان کے زیرو ہوتا ہے، تو امیڈیٹلی ڈپریشن میں۔ تو ڈپریشن کے کئی فیکٹرز ہیں، جس میں ایک فیکٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہ کیا فیکٹر ہے؟ کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ وہی زندگی آپ بھی جئیں، یعنی وہ چیزیں آپ کے پاس بھی ہو۔ اس کے پاس کار ہے تو آپ کے پاس بھی کار ہونا چاہیے، اس کے پاس میں بائک ہے تو آپ کے پاس بھی بائک ہونی چاہیے، اس کے پاس میں آئی فون ہے تو آپ کے پاس میں بھی آئی فون ہونا چاہیے، اس کے پاس میں اگر سوشل میڈیا پر 1,00,000 فالوورز ہیں انسٹاگرام پر تو آپ ہر ممکن کوشش کرو گے کہ میرے بھی 1,00,000 فالوورز ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا کیوں نہیں سوچتی ہے قوم کہ اس کے پاس میں خوب علم ہے تو میرے پاس میں بھی علم ہونا چاہیے، اس کے پاس میں غضب کا ادب ہے میرے پاس میں بھی یہ ادب ہونا چاہیے، اس کے پاس میں سکلز زبردست ہے میرے پاس بھی سکلز ہونے چاہیے، اس کے کمیونیکیشن سکلز زبردست ہے میرے کمیونیکیشن سکلز بھی بہترین ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں سوچ رہا انسان، پروڈکٹس میں جینا شروع کیا ہے، چیزوں میں، مٹیریل جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ چیزیں چاہ رہا ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں چاہ رہا۔ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ مینرز ہیں، اس بندے کے پاس میں غضب کے مینرز ہیں، میرے پاس بھی کاش ایسے مینرز ہوتے ہیں۔ اس کے پاس میں کمیونیکیشن سکلز ہے، میرے پاس بھی ایسے کمیونیکیشن سکلز ہوتے۔ محلے میں
बहुत से बूढ़े लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन एक आध नौजवान बच्चा तो ज़रूर होता है जो फजर की नमाज पढ़ता है। बाकी सारे नौजवान बच्चों में ये ख्वाहिश होना कि काश मैं भी ऐसे नमाज फजर के लिए उठूं और पढ़ूं, ये किसी के डिज़ायर्स नहीं है। उसके पास में बाइक है तो आपके पास होना लाजिम है। वालिद से लड़ेंगे आप, घर आकर बहस करेंगे, कुछ भी करें, मुझे ये दिलाएं। वो लड़का नमाज जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूँ, अम्मी जान मुझे फजर की नमाज के लिए जगाएं। अगर नहीं जगाए तो अम्मी से पूछना, अम्मी मैंने आपसे कहा, आप क्यों नहीं जगाए। दूसरे दिन अब्बू से कहना, अब्बू देखें मैंने अम्मी से कहा, वो मुझे नहीं जगाई हैं, आप मुझे फजर की नमाज के लिए जगाइए। ये ऐसा कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन के डिज़ायर्स हैं आज कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी ख्वाहिशात किन चीज़ों पर हैं? मटीरियल चीज़ों पर है। वो चीज़ें जिसका कोई जिक्र नहीं है कुरान में, वो चीज़ें जो अल्लाह पसंद ही नहीं करता है, वो चीज़ों के पीछे जाए आजकल हम सिर्फ जिससे आपका मर्तबा बने, भाग रहे हैं, जिससे आपका ऑनर बने। से बिल्कुल दूर हो गए। अब सब लोग यहाँ पर जमा हुए, इतने लोग मेरे पास आए हैं, तो आप लोग मेरा फ़ोन देख कर आए हैं, मेरी कार देख कर आए हैं, मेरा घर देख कर आए हैं, या मेरा बैंक अकाउंट देख कर आए हैं? क्या देख कर आए हैं? इस बंदे के पास में एक स्किल है, वो बंदा वो स्किल सिखा रहा है, काश वो स्किल मुझ में आ जाए। यही डिज़ायर्स हैं। और इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो अपनी ख्वाहिश से आते हैं, खुद से आते हैं, और दूसरे जो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ आए नहीं बल्कि उनको भेजा गया है यहाँ पर, वो पेरेंट्स के प्रेशर पर यहाँ पर आए हैं। ऐसे यहाँ पर है, मैं ये पूछना नहीं चाहता हूँ कि हाथ उठाकर गवाही दें कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुद आए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं वो आए नहीं बल्कि उनको भेजा गया है। ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लाख से ज़ायद नौजवान बच्चों को ऑलरेडी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे घूम घूम कर पढ़ाया हूँ। आई बॉल्स को देखकर आपकी कहानी में बता सकता हूँ कि आप कितने पानी में हैं, आपका क्या कैरेक्टर है, आपकी क्या सोच है। ये कोई जादू नहीं है, तजुर्बे से इंसान को मालूम होता है। तो मैं जो इंडिया का कोना कोना घूमा हूँ, इंग्लैंड में कम से कम 15 अलग अलग सिटीज़ में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, अफ्रीका के 3 कंट्रीज़ में लेक्चर्स हुए हैं। विज़िट तो 3 हुए, 1 कंट्री में लेक्चर दिया, 2 ऐसे लोगों में घूमना हुआ है। तो ये सारी दुनिया को देखने के बाद आसान हो जाता है कि इंसान को पढ़ें कि ये इंसान है क्या, ये चाहता क्या है स्टूडेंट। उसके हेयर स्टाइल को देखकर पता चल जाता है कि उसके वालिद की कितनी पकड़ है उस बच्चे पर, उसका क्या इरादा है ये तो मालूम हो ही जाता है। उसके अलावा उसके वालिद की कितनी पकड़ है, उसकी वालिद की कितनी तरबियत है, उसके हेयर स्टाइल से पता चल जाता है। पहले कहा करते थे कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कंपनी यानी वो नहीं जहाँ पर जॉब्स वगैरह की जाती हैं, साथी को भी कंपनी कहते हैं। जो हम सफ़र जो होता है, साथ चलने वाला जो होता है ना, आप मुझे कंपनी देंगे थोड़ा, मतलब मेरा साथ देंगे, थोड़ी देर आप बैठेंगे, इसको भी कंपनी कहते हैं। तो मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपका जो साथी है उसको देखकर पहले बताया जाता था कि ये कैसा बंदा है, इसका नेचर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी सोच क्या है। आज उसके कपड़ों को देखकर बताया जा सकता है, उसके हेयर स्टाइल को देखकर बताया जा सकता है। आज ये वो ज़माना है जो लड़कियां लड़कों की नकल कर रहे हैं और लड़के लड़कियों की नकल कर रहे हैं। यानी करीब जाने तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये लड़का है कि लड़की है। एयरपोर्ट में ऐसे हालात होते हैं, जाकर बैठने के बाद पता चलता है अरे गलत जगह बैठ गया मैं। वो अब देखें, ड्रेसिंग में देखें, लड़के अजीब अजीब लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, क्या क्या क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, और लड़कियां देखिए सब जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह पहनना पसंद। जीन्स कितने लोगों को पसंद है? बहुत लोगों को पसंद है। लड़कियों को अगर पूछे जीन्स पसंद है, मर जाती हैं जीन्स पर। अगर जीन्स पर मैं आपको कहूँ तो फिर आज से पहनना बंद कर देंगे आप। लेबर जो होता ना, लेबर पता है आपको, लेबर के लिए बनाया गया जीन्स, ताकि पीछे इधर एक जेब, इधर एक जेब, इधर एक जेब, इधर एक जेब, फिर जेब में और एक जेब, सामान रखने के लिए। लेबर जो काम करता है ना, उस सामान वगैरह रखकर काम करने के लिए जीन्स बनाया गया। अब उसको जीन्स कोई पहन लिया एक हीरो ने, तो उसको सारे लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। अब जीन्स तो जीन्स वहाँ तक सही था, उसके बाद कोई हीरो ने फाड़ कर पहना तो सब लोग चीर कर पहन रहे हैं। अभी एक दौर था जो फटे हुए कपड़े को सी कर पहना जाता था,
आज सिले हुए कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहन रहे हैं। एक लड़का ये पूरा खूबसूरत घुटना दिखा रहा है फाड़ के। मैं बोला बेटा कहाँ गिर गए हो बेटे? नहीं नहीं कहीं नहीं गिरा सर मैं। अरे ये पूरा फट गया ना, एक सही है एक फटा हुआ है। नहीं सर ये स्टाइल है, फैशन है, आजकल चल रहा। अगर आजकल चल रहा करके शाहरुख खान पूरे कपड़े उतार दिए तो आप भी उतारोगे? वो पैसों के लिए अगर कर दिया उसने, बहुत से एक्टर्स ने किया है ऐसा, आप भी करोगे? सोचे, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, आपको अल्लाह ने बताए हैं, सब उल्टा हम लोग कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आजकल के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हमें अपने बच्चों को इनकी वीडियोस दिखाना चाहिए और इनकी जो बातें होती हैं कि वो अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। जिस तरह से वो स्पीच देते हैं आजकल के जनरेशन के लिए बहुत अच्छी उनकी नॉलेज होती है, बहुत अच्छा वो नॉलेज देते हैं बच्चों को। तो वाकई में उनकी हर बात सच है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। और मैं तो बस यही कहूँगी कि एक बच्चे की तरबियत में सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है उनके माँ बाप का होता है। और माँ बाप जैसी तरबियत अपने बच्चों को देते हैं वो वैसे ही आगे चल के उनके सामने वो सारी चीज़ें आती हैं। तो माँ बाप को ये चाहिए कि वो शुरू से ही दीन और इस्लाम को लेकर चलें। और अच्छी तरबियत तभी हम दे सकते हैं जब हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीमात से ज़्यादा दीनी तालीमात अपने बच्चों को दें। क्योंकि आजकल ये हो गया ना, जितना ज़्यादा लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं तो उस हिसाब से लोग सोचते हैं कि बस हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उन बड़े बड़े कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों को हम दीनी तालीमात नहीं दे सकते। दुनियावी तालीमात तो उन्हें हासिल होती हैं लेकिन दीन से हमारे बच्चे बहुत दूर हो जाते हैं। नमाज से, कुरान से कितना दूर हो रहे हैं बच्चे। सिर्फ नफ्सियाती अपने ख्वाहिशातों को पूरा करने के बारे में सोचते हैं। वो नमाज की फ़िक्र नहीं है, कुरान की फ़िक्र नहीं है, अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को बताना है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है। क्योंकि ये ज़िम्मेदारी स्कूल और कॉलेजेस की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी हमारी है, पेरेंट्स की है, बच्चों के पेरेंट्स की है। क्योंकि तरबियत जो है वो पेरेंट्स देते हैं और आखिरत में सवाल जो है वो माँ बाप से किया जाएगा कि हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया था, दीनी तालीमात क्यों नहीं दी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ज़िम्मेदार हैं। तो हमें ही अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। क्या फ्यूचर हमें अपने बच्चों का बनाना है ये हमें तय करना है। क्योंकि रिस्क और रोज़ी अल्लाह ताला ने लिख दी है, जो हमारे नसीब में है हमें उतना ही मिलेगा। तो क्यों ना हम अल्लाह को राज़ी करके अपने लिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।